MCQ number 31. Dash is an example of pure form of cellulose. Silk, wool, कॉटन या पेपर. सो ये हमें पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज में एग्जाम्पल आ जाती है आपके पास कॉटन की. सो हेयर सी इज द राइट ऑप्शन. इसको इस तरह भी याद रख सकते, सी फॉर सेल्यूलोज एंड सी फॉर कॉटन. Now MCQ number 32. Lipids are soluble in which of the following? Water, no. Ether, all solvent, not in any of the above. So ether or benzene or petrol में lipids can be soluble, right? MCQ number 33. Lipid molecules can store double amount of energy as compared to same amount of carbohydrate because of high number of. देखिए डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करता है लिपिड कार्बोहाइड्रेट से, बिकॉज लिपिड हैव मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स as compared to carbohydrate. So here B is the correct answer. MCQ number 34. A compound produces as a result of chemical reaction of a alcohol with an acid in which water molecule is released is called. So acid किसमें release होगा? Definitely we are talking about the lipid. So here C is the correct answer. Neutral lipid. मोनोसैकेराइड नहीं है, फैटी एसिड नहीं है, सिर्फ लिपिड है. बिकॉज फैटी एसिड तो इटसेल्फ एक एलिमेंट है जो कि कंडेंसेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है. सो हियर द न्यूट्रल लिपिड इज द राइट आंसर. MCQ number 35. Fatty acid contain 18 carbon atom and a single double bond. Oilic acid is a type of lipid that contain 18 carbon, और ये it is one of the longest fatty acid. So oilic acid is the correct answer. सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात आ जाती है. पैल्मेटिक एसिड नहीं है बल्कि ऑयलिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर. MCQ number 36. Which one of the following fatty acid is more soluble in an organic solvent and has higher melting point? Acetic acid, butyric acid, palmitic acid. ये एसिडिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड तो फैटी एसिड है ही नहीं. सो हियर द पैल्मेटिक एसिड इज द एसिड that is more soluble in organic solvent. MCQ number 37. Which of the following statement is correct for fats containing unsaturated fatty acid? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? They contain double bond, ये करेक्ट है. They are usually solid at room temperature. They are lighter than water. Their specific gravity is less than 1. They are usually solid at room temperature because they are liquid at room temperature. B is the correct option. 38. Animals obtain carbohydrate mainly from. कार्बोहाइड्रेट जो है वो नॉर्मली हम प्लांट से लेते हैं. सो हियर द स्टार्च इज द राइट आंसर. 38 का बी. नाउ 39. पेप्टाइड बॉन्ड इज कार्बन नाइट्रोजन लिंक, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन. सो वी as we know that carbon nitrogen is a peptide bond that are present in the formation of amino acids. 40. Chemical compounds less in eukaryotic cell as compared to prokaryotic cell are lipid, carbohydrate, protein या nucleic acid, that is DNA की दी हुई है. A में है 1 and 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4 या 4 only. इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो यूकैरियोटिक में
कम है और प्रोकैरियोटिक में ज्यादा है। सो यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि लिपिड यूकैरियोटिक में ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट यूकैरियोटिक में ज्यादा होता है, प्रोटीन भी ज्यादा होता है, लेकिन डीएनए जो है ना वो प्रोकैरियोटिक में ज्यादा है, हमारे पास कम है, यूकैरियोटिक में कम। एंड एज वी नो दैट प्रोकैरियोट्स इज फॉल्स, pro means false and carry-on mean nucleus, and u means true and carry-on mean nucleus. So prokaryotic cell have a improper nuclear membrane as compared to eukaryotic cell. So here the D is the correct option. Now MCQ number 41. Protein comprises of dash percent of total dry weight of a cell. ये हमने याद रखना है 50% प्रोटीन एक अगर ड्राई, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई वेट ऑफ अ सेल? मीन्स अदर देन एक्वस, अगर एक सेल के अंदर सारा लिक्विड है, साइटोप्लाज्म है, आपने उसको खुश्क कर दिया, एक सेल को लेट सपोज आपने एवेपोरेट कर दिया, उसके बाद जो चीज बचेगी ना दैट इज अ ड्राई वेट ऑफ अ सेल, जिसमें 50% जो है वो प्रोटीन होगी। तो बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 42। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, डेफिनेटली फैटी एसिड्स जो हैं वो किसके मोनोमर्स है? लिपिड के हैं। आइसोप्रीनोइड भी जो है वो लिपिड का ही है। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का है, जबकि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का है। सो हियर सी इज द राइट आंसर। 43 द एलिमेंट्स in basic structure of protein which differentiate them from carbohydrate. Yes, इनमें से कौन सा ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन सल्फर नहीं होता भाई। सल्फर सिर्फ प्रोटीन में ही होता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन आंसर। MCQ number 44. The total number of amino acid discovered so far in a cell and tissues are. So इसका तो सिंपल सा आंसर हमें पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 170 अमाइनो एसिड जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं सेल में, और मोर 200 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स पता ये लगा है कि हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 200 ऑप्शन होता तो हम उस पर करेक्ट करते, क्योंकि 200 से बहुत ज्यादा सिमिलर है 170, तो हम यहाँ पर 170 पे टिक लगाएंगे। MCQ number 45. In glycine, an amino acid R group is replaced by. ग्लाइसिन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जिसमें आर, देखिए आर की वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमें पता है अमाइनो एसिड में एक तरफ NH3 होता है, एक तरफ COOH होता है, ऊपर R होता है, नीचे हाइड्रोजन है। तो R इज द रेडिकल, जो कि R अलग ग्रुप आ जाता है तो अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। अगर R हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है तो वो ग्लाइसिन बना देता है। A is the right answer. MCQ number 46. A bond formed by linkage between OH of carboxylic group of one amino acid and H of amino group of another amino acid will release water is called. ये पूरी स्टेटमेंट बताई हुई है कि जब आप लिंकेज कराते हैं और एक तरफ से आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, एक तरफ से आप अमाइनो ग्रुप लगा रहे हैं, तो वाटर रिलीज हो रहा है। तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डेफिनेटली हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन, अमाइनो अमाइनो एसिड बेसिकली जो स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको बता रही थी, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसमें तो सिंपल से जो आंसर है वो आपके पास आ जाना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड इज द ओनली बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। MCQ number 47. Total number of amino acid in hemoglobin are. देखिए जी, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल 574 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जो कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद हैं। सो हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इज अ टाइप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इन विच 574 अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट। MCQ number 48. An insulin molecule consists of dash polypeptide chain. Here B is the correct option answer, because insulin, again insulin is a hormone that are proteinaceous in nature, which is made up of two different type of polypeptide chains.
MCQ number 49. Which structure of protein give information about number and the sequence of amino acid? हमें सिर्फ और सिर्फ हमने याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको नंबर भी पता चलेंगे और सीक्वेंस भी पता चलेगी अमाइनो एसिड्स की कितनी है, बिकॉज सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है और हमें प्रॉपर सीक्वेंस नजर नहीं आती. तो यार ए इज द करेक्ट आंसर. MCQ number 51. In an aqueous environment, the most stable tertiary conformation is that in which dash amino acids are buried inside the conformation. ये बता रहे हैं कि एक aqueous environment की बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल चीज क्या होगी aqueous environment के लिए? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, बेसिक एंड नन ऑफ दीज. ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर हम एक एनवायरनमेंट की बात करें, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करें, सो हाइड्रोफोबिक इज वन ऑफ द करेक्टर जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है. तो इधर हियर ए इज द राइट आंसर. MCQ number 51. Hemoglobin molecule exhibit which structural organization of the protein? Hemoglobin is the most complex type of protein which contain quaternary structure, जिसमें अभी हमने पढ़ा था that contain 574 amino acid. MCQ number 52. Helical structure is kept by the formation of dash bond among amino acid molecules. Helical structure is a secondary structure, ladder-like structure in the protein, जिसमें कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड is the basic bond that are present in the helical structure. जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो उसमें डाइसल्फाइड भी आना शुरू हो जाता है, आयनिक भी आना शुरू हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी आना शुरू हो जाता है. So here A is the right answer. MCQ number 53. Which of the following does not show quaternary structure? Hemoglobin, pepsin, fibrin, insulin. Fibrin is a type of protein that doesn't show quaternary structure, although fibrin is fibrin जो है वो tertiary structure में आ जाता है. बाकी सब जो है quaternary structure show करते हैं. MCQ number 54. Which structural organization is most common in globular protein? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. ग्लोब्यूलर मींस एक प्रोटीन की दो टाइप की शेप होती है, एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन. ग्लोब मींस सर्कुलर इन शेप. सो हमेशा जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा ना प्रोटीन, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बनाएगा. सो हियर द टर्शरी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द MCQ number 55. Actin, myosin are the basic protein involved in contractile machinery of our body. To which type of the protein do they belong? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन. तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो आपकी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा होता है, वो इनमें से कौन से प्रोटीन में आता है? ग्लोब्यूलर में आता है, फाइब्रस में आता है, ए एंड बी में आता है. तो आपने ये बात याद रखना है कि जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ द बॉडी यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है, दैट आर टोटली मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. MCQ number 56. Antibody play important role against microorganism and other pathogen. To which type of protein they belong? तो ये आपने याद रखना, एंटीबॉडी तो होती है राउंडेड शेप है, तो here the globular protein is the right answer. Now MCQs number 57. ATP is an important molecule for its major function as an energy currency, coenzyme, both A and B, none of the important molecular function जो ATP का है वो ये energy currency है. So A is the right answer. Now MCQ number
58. Each turn of DNA contain dash nitrogenous base pairs 5, 10, 20 and 25. सो आपने ये बात याद रखना है कि 10 नाइट्रोजीनस हर टर्न में, डीएनए आपको पता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो हर टर्न में 10 नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स होते हैं. आपको पता है व्हाट डू यू मीन नाइट्रोजीनस पेयर, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनस bases: adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine always pair with the thymine and guanine is always pair with the cytosine. So here the 10 is the correct answer. Now MCQ number 59. The first organism of genome was completely discovered was. एक टोटल आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका पूरा जीनोम, व्हाट डू यू मीन जीनोम, द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल इज कॉल्ड जीनोम. ह्यूमन बीइंग का अभी तक नहीं पता चला, इन्फ्लुएंजा वायरस का नहीं पता चला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का पता चला है, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हियर द सी इज द करेक्ट आंसर. MCQ number 60. Which of the following statement is incorrect about RNA? The pentose sugar is in it is a ribose. Yes, it's a correct answer. It contain adenine, guanine, thymine and cytosine. ये तो यहीं पे wrong होगा क्योंकि thymine नहीं होता बल्कि uracil होता है. तो आपने B को देख लेना. B is the wrong. B is the incorrect one. But यहाँ पर correct answer है क्योंकि हमने incorrect कोई choose करना था. RNA constitute -% of the total cellular RNA. So students, as we know that we have 3 different types of RNA: mRNA, rRNA and tRNA. So यहाँ पर rRNA जो है उसकी टोटल जो परसेंटेज है वो 80% टोटल rRNA जो है RNA के अंदर होता है. सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो rRNA की होती है. Now MCQ number 62. There are mainly dash types of tRNA. tRNA की टोटल कितनी टाइप्स हैं? 20 डिफरेंट टाइप्स हैं tRNA की, ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर RNA की नहीं पूछ रहे, tRNA की, ट्रांसफर RNA की पूछ रहे हैं. MCQ number 63. Most of the cellular secretion are dash in nature. Most of the जो cell secrete करता है that are glycoproteinaceous in nature. So B is the right answer. Now MCQ number 64. Which conjugated molecule play important role in gene expression? Glycolipid, glycoprotein, nucleohistone. Obviously we are talking about the expression, gene expression, that's when we are talking about the nucleic acid. So nucleohistone is a conjugated molecule that play an important role in gene expression. Nucleo means conjugated है तो nucleic acid से और protein से मिलके बना है. MCQ number 65. The survival of an animal depend upon its ability to take some from its environment. किस पे dependent है? Obviously, we are talking about the biological molecule. The organic molecule is the right answer. MCQ number 66. Interconversion of carbohydrate, protein, and lipid in living organism are the example of coordinated catabolic activities, coordinated anabolic activities. So metabolism है basically, जिसमें catabolic, anabolic दोनों आ जाता है. तो C is the यानी A and B is the right answer. MCQ number 67. Carbon commonly combine with. किसके साथ नॉर्मली ये कंबाइन होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, phosphorus and sulfur, all of these. So all of these is the right answer. MCQ number 68. Non-polar organic molecules are dash in water. जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो वाटर में सॉल्यूबल हैं, इनसॉल्यूबल हैं, पार्शियली सॉल्यूबल हैं, या कंडीशन पे डिपेंड करते हैं? तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज सॉल्यूबल इन वाटर. ए इज द
दैट ऑप्शन, जबकि जो पोलर होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर, और नॉन पोलर वही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आ जाते हैं, और पोलर में आ जाते हैं आपके पास लिपिड। एमसीक्यू नंबर 69, in living organism the lubricant which provide protection against damage resulting from friction is, वैक्सी कवरिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म में कौन प्रोवाइड करता है? और यू कैन, नो नो नो, इट्स मीन के लुब्रिकेंट मीन्स दे प्रोवाइड अ एक्वस मीडियम अगेन ऑयलिंग। जैसे हम कोई भी चीज में ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, सो इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है हमें? कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड या वाटर? सो हियर द वाटर इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 70, इन सी, जिसे आपने बोला हुआ एक्स अभी नंबर नहीं बताया, H2O, और एक्स रेंजेस फ्रॉम, एक्स में क्या रेंज होगी और वाई में क्या रेंज होगी? 1 to 3000, 3 to many thousand। ये बेसिकली हमें हमारे पास कंपाउंड एक बताया गया है जिसमें डेफिनेटली हम 1 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट 1 के बाद हमने ऑड नंबर देखना है। सो सी की जगह जगह हम 3 लगाएं और H2O ऐसे ही रहने दें, और Y की जगह हम 1000, मैनी थाउजेंड मीन्स वेरी करता है, आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, थाउजेंड तक कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। तो वो एक रेंज बना देगा। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी रेंज हमेशा 3 to many thousand ही होती है। सो हेयर बी इज द राइट आंसर।